Hello everyone, I am Kartika and today we people will be starting up with your economics textbook. 10th standard, we'll be starting up with the first chapter of your economics textbook, which is development. So, as we people have discussed about development while I was discussing your geography chapter, I have discussed about development. So, in this chapter also, we people are going to look at the concept of development from the point of view of economy. इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डेवलपमेंट को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन जो है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. एंड देन जो पर्पस है इस चैप्टर को आप लोगों को पढ़ाने का वो ये है कि आप लोगों को डेवलपमेंट एज अ कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी ज़रूरी है. एंड क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं डेफिनेशन के, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं, सो यू पीपल नीड टू सी कि जो डेवलपमेंट है उसका एक जो बेसिक आइडिया है वो आप लोगों को मिल जाए. इसलिए हम लोग आपको ये वाला चैप्टर जो है पढ़ाने वाले हैं. एंड ऑल्सो because there are different perspectives on development and there are ways by which we can arrive at a common indicator for development. So that's why also it's important for us to know about development, because development को समझने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर है. किसी के लिए जो डेवलपमेंट है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, किसी के लिए जो है वो इकोनॉमी की अगर हम बात करें, अब इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स का आपका चैप्टर है, तो मैंने आपको कहा जो डेवलपमेंट है वो ज्योग्राफी में भी डिस्कस किया था. वो एक डिफरेंट तरीके से मैंने डिस्कस किया था. यहाँ जो है मैं डिफरेंट तरीके से डिस्कस करने वाली हूँ. यहाँ जब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की तो हम इकोनॉमी को बेसिस बना रहे हैं. तो जब हम इकोनॉमी को बेसिस बना रहे हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर्स जो हैं वो भी डेवलपमेंट के बदल जाते हैं. सो व्हेन पीपल टॉक अबाउट डेवलपमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वे पीपल आर लुकिंग टू इनकम. हम इनकम को ध्यान में रख रहे हैं. हम जो हमारा नेशन है उसमें कितना जो है इनकम के बेसिस के ऊपर डेवलपमेंट हो रहा है, कितना जो है लोगों को उनका लाइवलीहुड के बेसिस पे आगे जो है हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो हम उस बेसिस पे जो है इसको डिस्कस करेंगे. ओके. So we people now development it varies from country to country, it varies from state to state. जो indicators हैं development के वो भी अलग अलग हैं, states में अलग हैं, different states के अंदर different countries में अलग है. जो economic development है it can be measured, और जो उसका उसको जो है हम मेजर कर सकते हैं इनकम के थ्रू, या फिर हम उसको किसी और तरीके से मेजर कर सकते हैं. So these are the things that we all are going to discuss. Also you people will be going through the concepts of like per capita income, literacy rate, infant mortality rate. Then you people will be going through gross enrollment ratio, human development index. So these are the things that your people are going to see, and these all are the indicators of economic development. So this is how we people are going to discuss the chapter. I have given you a brief introduction of what we people are going to start today. So let's start with the chapter. After the introduction, now we are up to starting the chapter. So जो idea है development का, it has been with us like from many years. अब जो आजकल के countries का aim होता है वो होता है अपनी country को develop करना. So as we people know, India is a developing country. As we people know, US, UK, these are developed countries. These are advanced developed countries. We are a developing country. So the indicators that our country is taking into account when we people are talking about development, these are different than the indicators which are taken in America. Okay, क्योंकि उनके जो इकोनॉमी है दैट इज डिफरेंट, दैट इज इट्स टोटली वो बन चुकी है उनकी इकोनॉमी. हम अपनी इकोनॉमी को अभी भी बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए हम डेवलपिंग नेशन है, तो हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो अलग है. सो the aspiration, the desires that we people would like to live in, you know. अब ऐसा होता है ना कि यार कंट्री जो है हमारी डेवलप हो रही है, तो 50 साल पहले जो कंट्री का हाल था अगर हम 50 साल बाद देखें तो देयर आर अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स दैट आर यू नो टेकन प्लेस. So the scenario is changing now. After 50 years the scenario will be different. पहले अगर हम पास्ट से देखें तो जो है 50 साल पहले डेवलपमेंट अलग थी, इस टाइम पे देखें डेवलपमेंट अलग है. अब आने वाले 50 सालों में डेवलपमेंट और ज़्यादा एडवांस हो जाएगी. So it will change. So we have when we talk about we have ideas about what a country should be like,
what are the essential things that we require, can life be better for all, how should people live together, can there be more equality. So when we people, there are a lot of questions when a country is there. So regarding a country, there are a lot of questions. So these are the questions that comes to mind. So development involves thinking about these questions. So if we want to address these questions, so development is something that we people need to understand to answer these questions. Okay. And about the ways in which we can work towards achieving these goals. So if we people discuss about development, then we are actually discussing how to achieve the goals that, the questions that is being asked कि equality जो है वो आ सकती है या नहीं आ सकती है, जो life है वो और better हो सकती है या नहीं हो सकती है. इसका जो आंसर है वो अगर हम डेवलपमेंट को समझ लेते हैं तो हम काफी हद तक इसका आंसर जो है वो दे पाएंगे. इसका जो गोल है कि कैसे अच्छी लाइफ अचीव करनी है, किस तरीके से और इक्वालिटी अचीव करनी है, तो अगर हम डेवलपमेंट को समझ लेते हैं तो हम इस एम को भी अचीव कर पाएंगे. सो डेवलपमेंट इज अ वे ऑफ अचीविंग ऑल दीज थिंग्स. ओके, मूविंग ऑन फॉरवर्ड. सो ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है इस चैप्टर का, जहाँ पे कि हम डेवलपमेंट को अब समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के थ्रू. सो वी पीपल विल बी गोइंग थ्रू, अब क्योंकि प्रेजेंट को समझने के लिए पास्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, तो हम कुछ कुछ वो इंस्टेंसेस भी देखेंगे. एंड ऑल्सो वी पीपल विल बी लुकिंग एट हाउ इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस जो होप्स है, जो पॉसिबिलिटीज हैं रियल लाइफ को लेके, वो किस तरीके से जो है अचीव की जा सकती हैं. So this is what we people are going to discuss in this chapter. I have given you the introduction. I have started discussing the chapter. Starting chapter का जो introductory हो सकता था, introduction हो सकता था, वो भी मैंने आपको दे दिया है. Now we people will be looking at the very first topic in your book, which is what development promises different people, different goals. So development क्या promise कर रहा है, और जैसे डिफरेंट लोग होते हैं उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं, तो उसको अचीव करने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट होता है. So that is what we people are going to discuss. So let us try to imagine in your book. I am right now reading it from your book because we people need to अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. तो जो पहला है, मैं ये टॉपिक आपके बुक में से ही पढ़कर आपको समझा रही हूँ. उसके बाद जो है हम लोग, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, डिस्कशन के पॉइंट ऑफ डिस्कशन को हम लोग लेते हैं, डिस्कस करते हैं सारी चीज़ों को, बट मैं बुक में से इतना रीड नहीं करती हूँ. सो आई फॉर द फर्स्ट टॉपिक आई विल बी रीडिंग इट फ्रॉम द बुक एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग इट. और जो बाकी के बचे टॉपिक्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. आई विल नॉट बी रीडिंग इट फ्रॉम योर बुक, बट व्हेन वी पीपल विल बी डिस्कसिंग दोस टॉपिक्स, यू पीपल please take your books, please mark it in your books, please take down the notes, or you people need to have your books around when I'm discussing things. Okay, so let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different person listed in table 1.1. Because I have to discuss this table with you, so therefore I am taking the discussion from the book. Okay, सो अब देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस है उसके डिफरेंट मतलब होते हैं डिफरेंट लोगों के लिए. अब टेबल 1.1 पे अगर हम लोग देखें तो हर किसी का जो है वो डिफरेंट तरीका है. आपको टेबल दिखा देती हूँ. अब टेबल के अंदर जो है जो डेवलपमेंटल गोल्स और एस्पिरेशंस है वहाँ पे दिस इज काइंड ऑफ एन एक्टिविटी टेबल. So I will be discussing this activity, all the tables, all the boxes I'll be discussing. When I'll be ending up the chapter, I won't be discussing the boxes with you in between. अभी मैं नहीं शुरू करूँगी boxes का जो discussion है. So I'll be discussing it with you people later. So let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different persons listed in table 1.1. What are their aspirations? You will find that some columns are partially filled. Try to complete the table. You can also add any other category of persons. So there are आपको एक कैटेगरी में जो है वो लोग दिए हुए हैं, कैटेगरी ऑफ पर्सन, और उन कैटेगरी ऑफ पर्सन्स की एस्पिरेशंस क्या है. सपोज इफ इट्स अ लैंडलेस रूरल लेबरर, तो उसकी एस्पिरेशन, उसकी सोच, उसको क्या अचीव करना है लाइफ में, वो क्या चाहता है. अगर वो कहते हैं हम उसको डेवलपमेंट, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या है.
तो उसके जो एस्पिरेशंस हैं वो डिफरेंट होंगे फ्रॉम अ प्रॉस्पेरस फार्मर ऑफ पंजाब. And then so on, everyone listed in the column on your left of your book, you people can see सारे different लोग हैं, इनके aspirations भी different होंगे. And so for the first category I am reading, so landless rural laborer, more days of work and better wages. Obviously अब वो अगर laborer है तो उसको क्या है, if he someone is working as a labor, so he will be demanding better wages, more days of work. Local school is able to provide quality education for their children, education भी ठीक मिले उनके बच्चों को. Then there is no social discrimination and they too can become leaders in the village. So this is their demand. Now let us look at a prosperous farmer in Punjab. जो prosperous farmer होगा पंजाब का, अगर हम उसकी बात करें तो उसका जो goals होंगे वो different होंगे from a landless rural laborer. Okay, so let's us see. So जो prosperous farmer from Punjab है, उनके जो goals हैं, that is given in a book. Please, you people can look into your books. That is assured a high family income through higher support prices for their crop and through hard working and cheap laborers. They should be able to settle their children abroad. Now they have completely different goals. They have totally different aspirations in their lives. So everyone in this table, जैसे जैसे कैटेगरीज अलग होते रहेंगे वैसे वैसे उनके एस्पिरेशंस भी अलग होते रहेंगे. नेक्स्ट है फार्मर हु डिपेंड्स ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. अब ऐसे इंसान को क्या चाहिए, जिसके पास जिसको रेन चाहिए अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, उसे क्या चाहिए, उसे एक अच्छा इरिगेशन सिस्टम चाहिए जिससे कि वो जो पानी है, मोर ट्यूबवेल्स, ताकि इरिगेशन वहाँ का अच्छा रह पाए. अगर रेन नहीं आ रही है तो किसी तरीके से जो है इरिगेशन अगर अच्छा होगा तो वो क्रॉप्स अच्छे ग्रो कर पाएगा. देन अगेन जो है उनको जो क्रॉप्स है वो अच्छी जगह सेल कर पाए, मार्केट जो है उनको मिल पाए, उनको अच्छे रेट मिल पाए अपने क्रॉप्स के. सो दिस will be their aspiration, which is different from other people. Now talking about a rural women from a land owning family. अब एक वो औरत जो कि गांव से बिलोंग करती है, बट she belongs from a land owning family, जमींदारों के घर से वो बिलोंग करती है, उनकी एस्पिरेशन जो है वो डिफरेंट होगी. She will be not like any other women in the village. जैसे कि मान लीजिए फार्मर की वाइफ है, उनकी एस्पिरेशंस वैसी नहीं होंगी. She belongs from a good family because they are rich. It's not like if you're poor then you don't belong from a good family. It's not like that. But the thing is good as in income के हम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, इनकम के बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं, बिकॉज उनके पास पैसा है. सो उनका जो वे ऑफ लिविंग होगा वो डिफरेंट होगा उस औरत से जो कि एक फार्मर की बीवी है, गरीब वो लोग हैं उनसे. तो उनका जो वे ऑफ लिविंग होगा, उनका जो लाइफ स्टाइल होगा वो टोटली डिफरेंट होगा इस तरीके की लेडी से. देन अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ. नाउ अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ को क्या चाहिए भाई, जॉब चाहिए उसको. अनएम्प्लॉयड है वो तो पहले उसकी कैटेगरी के अंदर ही दे रखा है कि उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसको पैसे चाहिए, गुड सैलरी चाहिए, उसको जॉब पे अच्छा पर्सपेक्टिव उसको चाहिए, उसको प्रमोशंस चाहिए. ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ बेटर फ्यूचर फॉर हिमसेल्फ. दिस विल बी हिज एस्पिरेशन. Moving on forward, a boy from a rich urban family. Now, a boy from a rich urban family, इनका क्या होगा, तो बाहर पढ़ने चले जाएंगे, ठीक है, अच्छी स्कूलिंग इनको चाहिए, अच्छा रहन सहन इनको चाहिए, गाड़ियाँ इनको चाहिए. सो इनका जो एस्पिरेशन है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा. देन अ गर्ल from a rich urban family, a girl from a rich urban family, good education. Okay, then she might be she is willing to go for job, so she want employment or she wants to start her own business, whatever she likes to do. She wants to marry in some wealthy family, so that will be her aspirations, her goal in her life. So in this table we people are discussing what they want to do in their life. They people belonging from different categories, they have different aspirations, they have different outlook towards life. So this is what we people are discussing. So after you people take your time and you people fill this table. Then after filling up this table, I'll just show you in the book, I'll just show you
फॉर अ वाइल सो दैट यू पीपल कैन सी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये टेबल जो है आप लोग देख लीजिए, इस टेबल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टेबल 1.1 को। तो इसके जो कॉलम्स हैं आप देख सकते हैं, कुछ कुछ भरे हुए हैं और बाकी खाली हैं। तो जो खाली हैं उनको भी मैंने डिस्कस किया, बट आप ना अपने हिसाब से जो उसके अंदर भरो, आपको जो ठीक लगता है। कि अगर एक इंसान का ऐसी कैटेगरी से वो बिलोंग करता है तो उसका जो लाइफ को लेकर गोल होगा या एस्पिरेशन होगा वो ये होगा। तो आप ये अपने हिसाब से फिल कीजिए, उसके बाद जो है हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, सो आई एम टेकिंग अवे द बुक। सो जो टेबल है ये वाला जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है अब। सो हैविंग फिल टेबल 1.1, लेट अस नाउ एग्जामिन इट। Do all these person have the same notion of development or progress? After you people fill this table, I have, because I have told you what all I have filled in this table regarding different categories for different people. So I think no, they're not having same notion of development or progress. उनका जो development का notion है, उनका जो progress का notion है, वो सबका different है, अलग है, अपना अपना है। Then most likely इनका जो है वो एक सा नहीं है। Each one of them seeks different things. हर किसी को अलग चीज़ें चाहिए। एक फार्मर को अलग चीज़ चाहिए, एक लेबरर को अलग चीज़ चाहिए, एक रूरल वुमेन जो एक लैंड ओनिंग फैमिली से बिलोंग करती है उसको अलग चीज़ चाहिए, एक अर्बन एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है वो अलग चीज़ चाहिए, क्योंकि इनकी कैटेगरीज अलग है। तो इनको चाहिए भी जो चीज़ें वो अलग है, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, इनका लाइफस्टाइल अलग है, इनके जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस, या आप कह सकते हो इनकम के बेसिस पे जो इनके स्टेटसेस हैं वो सबके अलग हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी एस्पिरेशन है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है। तो जिसका पैसा नहीं है वो तो अब्रॉड पढ़ने का सपना नहीं देखेगा ना, और अगर देखेगा भी तो वो अलग तरीके का देखेगा, अपने पैसे खर्च के तो देखेगा नहीं, क्योंकि पैसे उसके पास है ही नहीं। वो सोचेगा कि यार मैं स्कॉलरशिप ले लूँ, अच्छा स्कोर कर लूँ। सो उनके एस्पिरेशंस जो होंगे वो अलग होंगे फ्रॉम द पीपल जिनके पास पैसे होंगे। उनको द पीपल हु आर पुअर माइट भी उनका आउटलुक है कि आई हैव टू टॉप माई क्लास इन ऑर्डर टू गेट एडमिशंस इन गुड यूनिवर्सिटीज। और जो रिच पीपल है दे माइट नॉट बी सो मच इंटरेस्टेड इन स्टडीज। उनको मान लीजिए पढ़ना नहीं, उनको कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बनना है, उनको बनना होगा फैशन डिजाइनर बनना होगा। तो उनके पेरेंट्स पैसे खर्च सकते हैं तो वो बनेंगे। सो हर किसी का जो है कॉन्स्ट्रेंट्स लाइफ में डिफरेंट है। दैट इज व्हाट वी पीपल आर लुकिंग एट। So therefore their aspirations, their goals, their outlook towards development, everything is different from each other. Moving on forward, सो देयरफॉर वी पीपल सी उन सबको अलग अलग चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, जो चीज़ें उनको लगती हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि वो फुलफिल कर पाए अपनी एस्पिरेशंस और अपने डिज़ायर को। सो इनफैक्ट हम लोग देखते हैं अगर दो लोग हैं जो कि इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पीपल मे सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्रुप के अंदर भी ऐसा होता है कि एक ही ग्रुप के हम लोग हैं लेकिन हम लोग ऑपोजिट चीजें चाहते हैं, हम लोग कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें चाहते हैं। A girl expect as much freedom as opportunity as her brother. So we are from the same family, we are from the same group of people, but the thing is that I expect as much freedom as my brother has, as much opportunity as much he is enjoying. I want equal opportunities which he is enjoying. It's not like if I'm a girl, I will be denied my right to gain education or my right to, go for, some employment opportunity, or my life to work as whatever I want to work as. If my brother has that freedom, then I would also ask for the same freedom. That's what we people are discussing. So they, यहाँ पर क्या है कि एक ही कैटेगरी से लोग बिलोंग करते हैं और इसलिए उनके जो वो अचीवमेंट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकती हैं आपस में। मान लीजिए एक फैमिली है, मान लीजिए हमारी फैमिली है और उसके अंदर जो मैं हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मेरा भाई भी डॉक्टर बनना चाहता है, मेरे जो फादर है वो चाहते हैं कि मेरा भाई डॉक्टर बने। सो इसका मतलब ये नहीं, अगर वो चाहते हैं कि मेरा भाई डॉक्टर बने तो मेरे को ये वो राइट नहीं है कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकती।
सो कभी कभी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग एम्स भी हो सकते हैं एक फैमिली के अंदर. मूविंग ऑन फॉरवर्ड, सो जो मान लीजिए अगर मेरे भाई को पसंद नहीं है कि मैं भी बाहर जाकर काम करूं. इफ आई एम अ गर्ल एंड आई एम वर्किंग and I want to work and he is a boy and he is working and he may not like it, that why is she working, so her brother may not like this. So similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams, but this may submerge the land and disturb the lives of people who are displaced, such as tribals. मान लीजिए अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए बिजनेसमैन को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो कहते हैं कि जी और डैम्स बनने चाहिए, पर और डैम्स कहाँ बनेंगे? जो और डैम्स हैं उनको बनाने के लिए हमें जगह चाहिए, तो हम जगह लेते हैं, जो फॉरेस्ट पैचेस को क्लियर कर दिया, कोई विलेज है उसको क्लियर कर दिया, तो उन लोगों को जो है रीसेटलमेंट के हम लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़, उन लोगों को रीसेटलमेंट के हम लोगों ने चीज़ें दे दी कि आपको कहीं और हम रीलोकेट कर देंगे, तो उनको दे लूज देयर हाउसेस, सिंपल, जहाँ वो रह रहे थे वो उस चीज़ को खो देते हैं. सो समटाइम्स दीज आर कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स. एक बंदा जो है जो चीज़ चाहता है उससे दूसरे का नुकसान हो रहा है. इफ माई ब्रदर डज नॉट वॉन्ट दैट आई शुड वर्क, तो मेरा नुकसान हो रहा है कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, आई वांट टू वर्क. वैसे ही अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बिजनेसमैन को, तो वो क्या करेंगे कि वो जो गरीब हैं उनको हम लोग जब डैम्स बनाते हैं तो आप जानते हैं कि अभी ट्राइबल लोगों को हमें हटाना पड़ता है, या कभी हमें विलेजेस हटाने पड़ते हैं, बिकॉज वी हैव टू बिल्ड अ डैम देयर. सो देयरफॉर पीपल जिनका वो लैंड था, जो लोग वहाँ पर रह रहे थे, दे विल सफर. सो अगेन इट्स अ कॉन्फ्लिक्टिंग एम. एक का फायदा दूसरे का नुकसान. ओके, सो दे माइट रीसेंट दिस एंड जो ये आपके ट्राइबल्स है, अगर उनको आप हटाएंगे तो वो क्या करेंगे, इसे रिसेंट करेंगे, उनको ये पसंद नहीं आएगा. एंड दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड. सो अब उनको भी भाई अपने लैंड को फर्टिलाइज करना है, तो इरिगेट करना है, तो उनको भी डैम्स चाहिए. वो प्रेफर करेंगे कि छोटे डैम्स बने, छोटे टैंक्स बने, ताकि उनको भी इरिगेशन जो है वो भी प्रॉपरली कर पाए. सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर. यहाँ पे हमने जो ये चीज़ पूरी पढ़ी है, इस टॉपिक को जो हमने पूरा डिस्कस किया है, तो दो चीज़ें हमारे लिए क्लियर है. कौन सी दो चीज़ें हम लोगों के लिए क्लियर है? पहली, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. अलग लोगों के अलग डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं. अगर मेरे लिए डेवलपमेंट एक तरीके की है, तो किसी और के लिए डेवलपमेंट दूसरे तरीके की हो सकती है. इट्स नॉट लाइक इफ आई वांट टू बी अ टीचर तो एवरीवन वांट्स टू बी अ टीचर. नो, someone wants to be an engineer, someone wants to be a doctor. So it's not like हर किसी का एस्पिरेशन एक ही होता है. तो हर किसी का एस्पिरेशन जो है वो डिफरेंट होता है. डिफरेंट लोग, उनके डिफरेंट एस्पिरेशन होते हैं, उनके डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं. मूविंग ऑन फॉरवर्ड, सेकेंड, what may be development for one may not be development for other. It may even be destructive for the other. सो देयरफॉर अगर एक इंसान के लिए वो डेवलपमेंट है, तो दूसरे के लिए भी वो डेवलपमेंट हो, ये बात ज़रूरी नहीं है. दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है. दूसरे के लिए तो मतलब जैसे हमने बात करा ना कि किसी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजनेसमैन है उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो चाहता है डैम्स बने. अब डैम्स बनाने के लिए हमें ट्राइबल हटाने पड़ रहे हैं, तो अब ट्राइबल्स के लिए वो एक डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन सी बन गई. सो दैट इज व्हाट वी पीपल आर डिस्कसिंग. Okay, so in this starting of the chapter, when we people discussed what development promises, different people, different goals. So जो ये वाला हम लोगों ने कैटेगरी पढ़ा है, इसको पढ़ के जो दो चीज़ें हमें समझ में आया है वो क्या आया है कि पहली बात जो डेवलपमेंट है, different persons can have different developmental goals. First है different persons can have different developmental goals. सो अलग लोगों के जो है वो अलग डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं. एंड जो नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने इस
टॉपिक को पढ़ी और हमें क्लियर हो गई वो क्या है, दैट what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other. So what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other. So दो चीज़ें जो हम लोगों ने देखी है यहाँ पे जो हमें क्लियर हो गई है वो क्या है कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, और दूसरा कि जो डेवलपमेंट है एक के लिए अलग हो सकती है और दूसरे के लिए अलग हो सकती है. ऐसा नहीं कि एक के लिए डेवलपमेंट का मतलब ये है तो दूसरे के लिए भी वही सेम मीनिंग हो. दूसरे के लिए अलग मीनिंग भी हो सकता है और वो मीनिंग उसके लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है. So that is what we people have discussed. So we people have discussed the very first topic. The next topic we people see is of income and other goals. So I'll be starting up this topic. Let's see हम ये topic कहाँ तक जो है ख़त्म कर सकते हैं, कहाँ तक हम इसको डिस्कस कर सकते हैं. अगर मैं सेशन में कर पाई तो मैं इसी सेशन में इसको ख़त्म कर दूँगी. अगर मैं इस सेशन में नहीं कर पाई तो I'll be taking this up in the other session. Okay. So most probably I think I'll be able to finish up this topic in this session. So let's start. The next topic that we people are going to discuss here now is income and other goals. That is the next topic. I'll just income and other goals. So this is what we people are going to discuss now. So when we will talk about income and other goals, so हमने जो है वो टेबल 1.1 पढ़ा है अभी, क्योंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया तो आप लोगों को याद होगा टेबल 1.1. सो हमने नोटिस किया एक कॉमन चीज़ वहाँ पर, वो क्या नोटिस करी हमने, दैट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क, better wages, decent price for their crops, other products they can produce. In other words, they want more income. So एक चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी वहाँ पर वो थी related to income, कि उनको काम चाहिए, उनको अच्छे वेजेस चाहिए, उनको डिसेंट प्राइजेस चाहिए, उनको और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है. तो दीज आर द थिंग्स दैट वी पीपल हैव डिस्कस्ड earlier while we people were discussing the table. So उससे जो हमें एक फैक्टर हमारे दिमाग में आया है, एक जो वर्ड हमारे दिमाग में आता है इन सब चीज़ों को देख के, वो क्या आता है, इनकम का. So besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment. So इनकम के साथ साथ लोग एक चीज़ और देखते हैं, वो क्या देखते हैं, दैट इज इक्वल ट्रीटमेंट. और जो चीज़ें देखी जाती हैं इनकम के साथ साथ वो क्या देखी जाती हैं, वो है इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स. इफ वी पीपल वांट that someone should respect us, we people want to be respected, then we need to respect the other person as well. It's not like अगर हम लोगों को respect चाहिए तो हम सामने वाले को disrespect कर सकते हैं. It's a vice versa concept. Okay, so now people, they have this tendency to resent discrimination. अगर हमारे साथ discrimination होता है then we people don't like it. ऐसा है कि मतलब अगर बीइंग अ गर्ल मुझे काम करने से मना किया जाए और मेरे भाई को काम करने का पूरा परमिशन दिया जाए, सो आई विल बी रिजेंटिंग इट. व्हाई? एम आई नॉट अ ह्यूमन? एम आई नॉट इक्वल टू हिम? व्हाई डू यू थिंक आई शुड नॉट वर्क? सो आई वुड लाइक the other person to give me an equal treatment. I will want him to, not discriminate on the basis of whatever basis he is taking that discrimination on. Any basis of discrimination for that
purpose. I think it's totally unnecessary, it's totally unfair. So डिस्क्रिमिनेशन तो किसी भी तरीके का हो किसी को भी पसंद नहीं आता है. सो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हर कोई रिजेंट करता है. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption, because material goods are not that all you live on. So कुछ कुछ केसेस में तो सिर्फ यही फैक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इनकम इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि आप सिर्फ इनकम पे अपनी ज़िंदगी नहीं काटते हो. मान लीजिए मेरे पास पैसा है बट मेरा एक्चुअल एम है काम करने का, मेरा एक्चुअल एम है अपनी आइडेंटिटी बनाने का, बट आई एम बीइंग डिनाइड दैट. सो मेरे लिए इनकम इम्पॉर्टेंट नहीं है वहाँ पर. मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मुझे खुशी मिलती है काम करके, मुझे खुशी मिल रही है अपनी आइडेंटिटी बनाने में. सो दैट इज समथिंग विच इज मोर इम्पॉर्टेंट टू मी दैन इनकम. सो इनकम से भी इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ है कभी कभार कुछ कुछ सिचुएशंस में, एंड दैट इज दैट टोटल नो discrimination. You cannot discriminate me on any grounds. It's totally unfair. So that is what we people see. So when we people started this topic, so we people saw that हम पहले ही जो टेबल है पहला वाला टेबल उसको ही बेसिस बना करके जो है वो पहली स्टार्टिंग जो है वो की गई है. और जो वो पहली स्टार्टिंग है उसमें ही वो क्या कह रहे हैं कि लोगों के लिए इनकम प्रोड्यूस करनी ज़्यादा दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो इनकम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. सो पीपल दे वांट मोर इनकम. फर्स्ट थिंग दैट वी सी इज पीपल वांट मोर income. First thing. Okay, next thing we people see that apart from income people also want to seek other things. People seek other things also apart from income. और चीज़ें जो लोग सीख करते हैं वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल all you people in like equal treatment, equal treatment लोग सीख करते हैं. then people they seek freedom, people seek security. next people seek respect of others and respect of others. So these are the things that we people see कि सोसाइटी इन चीज़ों के ऊपर टिकी हुई है. हमारी भी कंट्री के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं. इट्स नॉट लाइक कि हमारी कंट्री में ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं मानी जाती. ये हमारी कंट्री में भी जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं. मूविंग ऑन फॉरवर्ड, जो मनी है अगर हम लोग बात करें, इनकम की बात करें, मनी की बात करें या कंजम्पशन की बात करें, मटेरियल गुड्स की बात करें, इनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो कभी कभार क्या हो जाता है दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट थिंग दैट वी पीपल सी इज दैट पीपल रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन. पीपल resent discrimination, and sometimes discrimination को resent करना हमें हमारी इनकम से, हमें हमारे पैसों से, हमें मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है कि हमें डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, हमें फ्रीडम मिले, हमें सिक्योरिटी मिले, हमें रिस्पेक्ट मिले. ये कभी कभार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है हम लोगों को लगता है. सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड, money or material things that I hope you people are taking down the notes side by side. ये chapter इतना मुश्किल नहीं है. It is totally I am just discussing it with you people totally on the basis of what we people कहते हैं discussion. बस जनरल चीज़ें हैं, जहाँ पे चीज़ें थोड़ी मुश्किल होंगी हम उनको अच्छे से डिस्कस. तो देखिए मैं पूरा चैप्टर ही अच्छे से करूँगी, बट अगर कुछ मुश्किल लगता है, मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए मुश्किल है, मैं उसको और अच्छे से डिस्कस करूँगी. Okay, so please don't get confused. Please
डोंट गेट डाउट्स. अगर आपको डाउट्स जो हैं अवॉइड करने हैं तो प्लीज़ आप, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग अपनी बुक्स को भी देखते रहिए. आप बुक के अंदर भी उस चैप्टर को रेफर कीजिए जिस चैप्टर को मैं डिस्कस कर रही हूँ. ओके. So money or material things that one can buy with it is one factor on which our life depends. तो जो एक फैक्टर है हमारी लाइफ जिस पे डिपेंड करती है वो क्या है? That is money और material things, जिससे हम चीज़ें खरीद सकते हैं. तो ये एक फैक्टर है जिस पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है. So, but the quality of our life also depends on non-material things which I have mentioned here. सो हमारी ज़िंदगी जो है वो खाली पैसों वाली चीज़ों पे, सिर्फ मटीरियलिस्टिक थिंग्स पे ही डिपेंड नहीं करती है. इट डिपेंड्स ऑन अदर थिंग्स एज वेल विच यू पीपल कैन सी ऑन द स्क्रीन. आई एम डिस्कस विद यू पीपल दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एंड देयर इज सिक्योरिटी, फ्रीडम, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट. सो इन नॉन मटीरियल थिंग्स के ऊपर भी हमारी लाइफ जो है वो डिपेंड करती है. सो इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू you that just think of the role of your friend in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured but they mean a lot to our lives. So taking the case of मान लीजिए हम friendship का अगर case ले लें तो friends, they are very important. We want to friend other people, we want to be friends with them, we want their friendship. It is very vital up now because you people are in 9th and 10th. So अब जो है आप लोगों के काफ़ी फ्रेंड्स भी होंगे, आप लोग और फ्रेंड्स बनाना भी चाहते हैं, आप और लोगों से बात करना भी चाहते हैं. So we people see that how these things are important. Now these things are not based on money. मुझे किसी की फ्रेंडशिप खरीदने पे नहीं मिलती है, मुझे किसी को फ्रेंड बनाने में it takes things other than money. It takes your time, it takes your feelings, it takes you to care for someone. So these things are totally जैसे हम कहते हैं ना कि इसमें कोई पैसों का रोल नहीं है, मनी का जो है वो रोल नहीं है. सो वैसे ही जो और चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो खाली मनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मनी के अलावा भी और चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं. दैट इज व्हाट वी पीपल आर लुकिंग एट. सो अदर थिंग दैट वी पीपल आर लुकिंग एट इज दैट और जो हम चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे वो क्या है? दूसरी चीज़, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इज वन फैक्टर दैट आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन. बट जो क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियलिस्टिक थिंग, इट डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स. सो क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, quality of our life depends on non-material things. कौन सी नॉन मटेरियल थिंग्स? जो अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी, फ्रीडम, the things I have discussed with you people, these are non-material things. So जो हमारी quality of life है वो non-material things पे depend करती है. और जो money है it is only one factor जिस पे हमारी life depend करती है. ऐसा नहीं है कि money हमें हर चीज़ ला कर दे सकती है. So it is not the only factor but it is just one factor. And money is only one factor on which our life depends, on which our life depends. Okay, so I hope you people can see this here on the page. Next is that similarly we people see that there are many things that are not easily measured but they mean a lot to our lives. अब जो कुछ चीज़ें हैं जैसे आप हर चीज़ को measure नहीं कर सकते हो. You cannot measure feelings, you cannot measure
this friendship, you cannot measure freedom, you cannot measure security. These are some things that make your life better. That's it. They just add more value to your life. It's not that you can आप इन चीज़ों को गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, ऐसा नहीं है. आप इनको क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर देख सकते हो. इनकी जो क्वांटिटी है आप उसको मेजर कर सकते हो, ऐसा नहीं है. आप इन्हें क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो. These just add a good quality to your life. So these are, ये जो चीज़ें हैं जो हम नॉन मटेरियल चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, इन्हें काफ़ी बार जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है. So these things are often ignored. So moving on forward with this topic only, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. So therefore to say that जो चीज़ आप measure नहीं कर सकते वो चीज़ important भी नहीं है, ये कहना गलत होगा. It's not like that. Sometimes we cannot measure something, but it is very important to us. It is crucially important to us. Like my friends, like my family, like my security, my freedom, my equal treatment, my respect. I should not be discriminated. These hold utmost importance for everyone. So but I cannot quantify it. मैं इसे count नहीं कर सकती हूँ, मैं इसे measure नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत important है. So हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि क्या कहना गलत होगा. तो conclude करते हैं कि ये कहना जो है कि जो चीज़ें हम measure नहीं कर सकते वो important भी नहीं है, ये कहना गलत होगा. So therefore it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. So now let's go through I'll just whatever I have discussed. I haven't finished the discussion of the topic, but I'll be discussing the topic with you in the नेक्स्ट. ये जो क्लास है, मैंने आपको बोलता कि इस वाली क्लास में शायद मैं सेशन के अंदर ये जो टॉपिक है ख़त्म ना कर पाऊँ, तो मैं एक बार आप लोगों को जो है वो दे देती हूँ आप लोगों को क्विक रिकैप जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया. तो जो पहला टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था इसमें कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था दैट different people, if there are different peoples, we will discuss the different categories of people. So they have different developmental goals. उनके लिए development का मतलब भी different है. So जो development है that, and जो next चीज़ हम लोगों ने देखी development के regarding वो क्या थी कि जो development है it may be development for one may not be development for other. एक इंसान के लिए जो चीज़ development है दूसरे के लिए भी वो development हो ये ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया दैट इज जो हम कर रहे हैं डिस्कस दैट इज इनकम एंड अदर गोल्स. उसके अंदर हमने क्या देखा दैट पीपल दे उनके लिए जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है इनकम. दे वांट मोर इनकम. और पीपल also other than income they seek other things also, which is like equal treatment, freedom, security, respect for others, and also they resent discrimination. उन्हें discrimination जो है वो पसंद नहीं है, किसी को भी discrimination पसंद नहीं होती है. Moving on forward, जो quality of life है हम लोगों की दैट इज समथिंग जो कि सिर्फ इनकम पे डिपेंड नहीं करती है, वो और चीज़ों पे भी डिपेंड करती है जैसे कि नॉन मटेरियल थिंग्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया जैसे फ्रीडम, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, इस पे भी डिपेंड करती है. और जो इनकम है वो सिर्फ एक फैक्टर है जिस पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है, वो सिर्फ
वो फैक्टर नहीं कि इसी पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है, इस पे भी हमारी लाइफ डिपेंड करती है। तो ये एक ही फैक्टर है इनकम। इनकम के अलावा और नॉन मटेरियल फैक्टर्स भी है जिस पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है। सो देयरफॉर टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज रॉन्ग। सो यहाँ तक जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ये टॉपिक। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी finishing up this topic and I'll be taking up next topic which is national development in the next session. So this was all for this session. Thank you everyone.